If you find this type of functional groups such as RC double bond OH, RCOOH, or RCO2H, these compounds are known as carboxylic acids. Okay. Now, this group basically is a combination of two things: carb, which is coming from carbonyl group, and oxy, which is coming from hydroxyl group. Okay. So this is a combination of both carbonyl group and hydroxyl group. So to sum up, we can write that this is RCOOH group. It is known as carboxyl group. Okay. Day-to-day life, we had seen that this thing is present in citrus fruits or sour milk, etc. So next, these are some common names of some well-known carboxylic acids. According to common naming system, we have to write down the name acid in the carboxylic acid. Okay. So what is the rule for common naming system? There is no perfect rule for common naming system. So how we are naming this carboxylic acid according to common naming system on the basis of source from where we got this carboxylic acid. So formic acid is obtained from formica, which is well known, and acetic acid is obtained from acetal. This is the naming system of carboxylic acid according to common naming system. Next part is some other naming system of this carboxylic acid, that is the IUPAC nomenclature of carboxylic acid. In the IUPAC nomenclature, we have to refer the name alkane, and in the alkane name we will correct the ending letter. We will replace the E by oic acid. Okay, in common naming system, at the end we have to write IC acid. In the case of IUPAC nomenclature, we have to end with oic acid. Okay. So if it is a single carbon unit containing carboxylic acid, hence this is made up with the help of methane. So it is known as methanoic acid. We can replace the E by oic acid. Methane now become ethanoic acid, and propane now become propanoic acid. So there are some rules to write down the IUPAC nomenclature of carboxylic acid. If you may find some substituents over this carboxylic acid, we have to follow some rules of IUPAC nomenclature. Rule is very simple. Initially, we have to select a parent chain, and after that, we have to number the chain. So definitely, we have to number from that side which contains COH group. So COH carbon will get number 1. Now we have to see what are the substituents present on the carboxylic parent chain. So if you find this example, you may find 3 substituents over this ring, over this compound. On the second position, methyl group; on the third position, formyl group; and on the fourth position, phenyl group. So according to alphabetical order, we have to see that which letter come first. So here in this case, formyl F is the first letter. We have to start with formyl. So 3 formyl, then 2 methyl, 4 phenyl, butanoic acid. Remember that we have to write down this in a single word until oic. Okay. So we will not give any space behind between phenyl and butanoic. Okay. So it is 3 formyl, 2 methyl, 4 phenyl, butanoic, space acid. Okay. Next, IUPAC nomenclature of cyclic carboxylic acids. So you may find these examples also. This is a compound carboxylic acid synthesized with the help of this cyclohexane carbaldehyde. So this is your cyclohexane carboxylic acid. Okay. Now your carbaldehyde is converted into carboxylic acid. Naming is also according to that. So what we have to do, we have to write down the cyclic ring, name of the cyclic ring, then cyclohexane or cyclopropane, and we have to end with carboxylic acid. Okay, cyclohexane carboxylic acid. Next, while numbering this chain, while numbering this structure, what we have to do? We have to start the numbering with the carbon atom from where we have to attach the carboxylic group is attached. So if you find this is the position, this is the carbon number 1, and we have to see that on which side substituent is there. We have to follow the direction, either it may be clockwise or anti-clockwise. So you may find that on the third position OH group is there. So you will write this compound as 3-hydroxy, then the remaining name cyclohexane carboxylate. See the next example, the last example, that is your benzoic acid. So what is the group here? This is not a cyclic, this is the cyclic ring which is present there, but this ring is aromatic. Okay, the name of this compound is, instead of cyclohexane, this is benzene. Okay,
the benzene carboxylic acid, which is a well-known compound known as benzoic acid. Now, while writing the substitutions on this aromatic ring, again we have to follow this rule also, which is there in the cyclic system. So see the substituents, see the position of the substituents. You have to follow the direction either clockwise or anti-clockwise. So here what we will do, we will just, if there is two substituents are there, what we will do, we will follow the alphabetical order. Okay. So here you may find hydroxy group is also there and methyl group is also there. So hydroxy group will come first. So this is your 3-hydroxy 4-methyl benzoic acid. The next example, two functional groups are there. First one is your formyl group and second one is your nitro group. If you see the alphabet, F will come first. So we will number the compound. Next are the examples of dicarboxylic acids. You may find some examples such as the structure which is having two COH group. Okay, so very well-known example of oxalic acid. Here you may find two COH group attached to each other. So how to name these compounds? So naming is very simple. Again, we will make a base of alkane, and we will what we will do at the end of this alkane we will write dioic acid. Okay, so it is made up with the help of two carbon here. So it is your ethane dioic acid. We will not replace any E from this name. Okay, in previous examples what we had done, we had replaced the E by oic acid. In this case, what we will do, we will completely write down the name of alkane and dioic acid in one word. Okay, so ethane dioic acid, propane dioic acid, butane dioic acid. These are some examples of dicarboxylic acids. Then next, okay, while writing the nomenclature of these compounds, if these compounds are substituted, so again what we will do, we will name the compound where the substituent will get least possible numbering. Okay, see the first example. Here you may find two COH group at both the ends, and some substituents are there. The first one is your ethyl group and second one is your methyl group. So what we will do, we will start the numbering from that end, from where the substituent will get least possible numbering. Okay, while considering the right side, the ethyl group will get number 2 and methyl group will get number 3. While considering the left side, numbering from left side, the methyl group will get the number 3 and ethyl group will get the number 4. So we will follow this order, that we will number from right side, and the naming of this compound is according to alphabetical order. It is 3-ethyl, 2-ethyl, 3-methyl pentane dioic. Again, same system. These two COH group will be there on the cyclic ring system. So we have to number like this. See what is there. See the example. It is cyclohexane 1,2 dicarboxylic acid. What we will do here, instead of carboxylic acid, we will write dicarboxylic acid. Here what we have to do, we have to check the position of this two COH group. It may be either adjacent or it may be alternative. Okay, it may be ortho to each other or it may be ortho meta to each other, whatever. So see in the first example, cyclohexane 1,2 dicarboxylic acid. In the second example, it is cyclohexane 1,3 dicarboxylic acid. Okay. Now you may find some substituents also. So see the numbering. In the first example, see the numbering of this compound. It is 4-methyl benzene 1,3 dicarboxylic acid. यहाँ पर आप लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर नंबर 4 क्यों दिया गया मिथिल को। नंबरिंग का बेस हम लोग किसको बनाएंगे? अगर मैं नंबरिंग इसको 2 देता और COH की तरफ से स्टार्ट करता तो सेकंड वाला COH नंबर 5 मिलता था उसको, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे सबसे पहले कि करीब है क्या एक दूसरे के। मतलब अगर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है तो वहाँ से सेकंड की तरफ मैं पढ़ूंगा और नंबरिंग करूँगा। अभी ये केस में मिथिल ग्रुप को नंबर 4 मिल रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करता तो मिथिल ग्रुप को नंबर आई थिंक 6 मिलता था। ये बेसिस पे दिस इज द डायरेक्शन टू राइट द नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। द सेकंड एग्जांपल अगेन 1 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप को नंबर 4 मिल रहा है ना। तो ये बेसिस पे नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज, नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज
4-methyl benzene, 1,2 dicarboxyl. Now, very important point: properties or physical properties of carboxylic acid. कैसे दिखते हैं carboxylic acid? अगर आप लोगों ने देखा रहेगा. So, any guesses from your side? आप लोगों ने कभी देखा है carboxylic acid को लैब में? Anyone? Lower carboxylic acid are liquid in nature. Any example? Formaldehyde. Formaldehyde, very good. Formaldehyde, which is also known as formic acid, है ना? कभी-कभी होता है एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं. तो फॉर्मिक एसिड आप लोगों ने सुना रहेगा. HCOOH लिक्विड में रहता है, लिक्विड कंपाउंड होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत फेमस एग्जांपल हमारे लैब में रखी होती है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं उसको. एक देखो आप लोगों ने देखा रहेगा, एक वाइट कलर की बोतल में रखा होता है लिक्विड, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी. बॉयज, एसिटिक एसिड. ग्लेशियर एसिडिक एसिड के नाम से फेमस है ये. तो एसिडिक एसिड विच इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ओडर, तो ये आप लोगों ने देखा है. इट इज द एग्जांपल ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर ध्यान में आप लोग क्या रखेंगे? The lower chain containing carboxylic acids are basically liquids in nature. तो अप टू 10 यूनिट जो रहेगा, कार्बन 10 यूनिट तक जो भी रहेंगे एग्जांपल्स वो लिक्विड रहेंगे. अबाउ एग्जांपल्स आर बेसिकली वैक्सी सॉलिड्स और सॉलिड्स. ओके, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट हम लोग बढ़ा दें तो उसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक तो अपीयरेंस हमारे सामने है. सेकंड थिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं. सी देयर आर 4 एग्जांपल्स. चारों के एग्जांपल अलग अलग है. लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एग्जांपल अल्कीन है, उसके बाद में कीटोन है, देन योर अल्कोहल एंड फाइनली योर कार्बोक्सिलिक एसिड. सो नीचे आप लोग देखो उन लोग के बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं. So alkene is having 31 degrees Celsius, and your ketone is having 80 degrees Celsius, then your alcohol which is having 99 degrees Celsius, and finally your carboxylic acid 141 degree Celsius. क्या चीज़ समझ में आ रही है हम लोग को इससे? That on the higher side carboxylic acids are there, okay, and they are having high boiling points than any other compounds. समझ में आ रहा है आप लोग को? So why this thing is there? Because see the structure of your carboxylic acid. नीचे दो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन किया गया है, मतलब वो दोनों के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन दिख रहा है. फॉर एग्जांपल अगर वेसल में ग्लेशियर एसिडिक एसिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है एसिडिक एसिड के, तो यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शंस दिखाएंगे. और वो बेसिस पे होना क्या है, हम लोग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी. नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, और ये इंटरेक्शन होने के बेसिस पर उन लोग को ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होगा उतना ज़्यादा हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी हम लोग को बॉईल करने के लिए. लिक्विड है और लिक्विड को हम लोग को करना पड़ेगा बॉईल. तो यहाँ पर अबाव 100 हम लोग को टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ वाटर हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा? हम लोग यूज़ करेंगे आइदर हीटिंग मेटल और ऑयल बाथ. तो ये बेसिस पे इन लोग के बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े से बढ़ के मिलेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज दीज आर दी स्टेबल कंपाउंड्स एंड ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी हैव टू we require high amount of energy to create this bonds. तो एक और एक चीज़ इसमें आएंगी कि सॉल्युबिलिटी कैसे लेंगी लोग की. तो वही चीज़ आएगा सॉल्युबिलिटी में भी कि इनके बीच के जो इंटरेक्शंस रहेंगे वो बेसिस पे इन लोग वाटर से भी थोड़ा सा सॉल्युबल कर जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और इसमें जो लोअर मेंबर्स रहेंगे वाटर पे सॉल्युबल रहेंगे. और अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ाएंगे तो हम लोग को हमेशा मालूम है किसी भी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन को जब हम लोग बढ़ाते हैं सीरीज को CH2 CH2 CH3, तो इनका लिपिड कैरेक्टर बढ़ जाता है, लिपोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाता है. एक लेवल तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके काम आएंगी और वाटर सॉल्युबिलिटी दिखाएंगी. जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएंगी. एंड दिस कंपाउंड्स नाउ विल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. Now, when we in the last lecture, what we had seen the basicity in amines. So in this chapter, what we have to see the acidity of carboxylic acids. ये दोनों चैप्टर में ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सिलेबस में खास इसको हाईलाइट किया गया है. ये एसिडिटी आप लोगों को पूछी जाएंगी और इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी पूछा जाएगा ऑन एसिडिटी.
तो आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ना है, उनकी एसिडिटी भी पढ़नी है। ओके, सी दिस रिएक्शन. So what actually occur? Your carboxylic acid will dissociate into carboxylate ion and your proton, RCO minus and H plus ion. Okay. Now, if we see the concentration, if we calculate this, so this is Ka, which is acid dissociation constant. So you may find this equation. If the value of Ka is higher, means the acid is strong. If the value of Ka is weak, means the acid is weak. तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू डोनेट द H plus ions. किसी भी एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच डोनेट H plus ions and bases are the compounds which donate OH minus ions or accept H plus ions. तो यहाँ पर भी यही केस होगा कि एसिड है. प्रॉब्लम इज दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेसिकली वीक एसिड्स, दे आर नॉट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो इन लोग की थोड़ी क्षमता कम रहेगी H plus आयन प्रोवाइड करने की, बट इन लोग भी करेंगे और आपको दोनों आयन्स मिलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन माइनस चार्ज एंड प्रोटॉन प्लस चार्ज. तो यहाँ पर जितनी की A वैल्यू ज़्यादा रहेंगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जितनी कम रहेंगी उतना वीक एसिड रहेगा. अपोजिट इफेक्ट क्या रहेगा? pKa का. pKa कभी भी उसका इन्वर्स होता है. तो जितना pKa कम रहेगा तो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना pKa ज़्यादा रहेगा एसिड उतना वीक रहेगा. मतलब pKa आप किसको करस्पॉन्ड कर सकते हैं? pH, जो हम लोग की pH की साइकिल होती है ना, pH HLP जो हम लोग की स्केल होती है, pH की 1 to 14. हम लोग को मालूम है कि एसिड्स के वैल्यूज क्या रहते हैं? 7 से उल्टे जाती है ना, ऊपर की तरफ जाती है. 1 2 3 मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है उसमें. जैसा जैसा हम लोग नीचे जाएंगे 7 की तरफ आएंगे वो वीक एसिड्स हो जाते हैं. तो कभी भी इसकी वैल्यूज pKa की कम रही मतलब स्ट्रॉन्ग, Ka उसका अपोजिट है. ठीक, तो ये चीज़ आगे हम लोग के काम आने वाली है कि pKa वैल्यूज से समझ में आएगा कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना कम strong. Now we will see the effects of substituents on acidity of first aliphatic carboxylic acids. Okay, so see this table. You may find some examples. The first structure, the compound is your 1 carbon unit containing carboxylic acid, ethanoic acid. इसको हम formic acid बोलते हैं. Second is your acetic acid, ethanoic acid. Third is propionic acid, propanoic acid, and heptanoic acid. pK वैल्यू आप लोग देख लो इनकी. pK वैल्यू अगर मैं देखूँ तो जैसा जैसा मैं कार्बन की चेन को बढ़ाते आ रहा हूँ pK वैल्यूज मेरे को बढ़ के मिलते आ रही है. What it indicates? It indicates that if we increase the substituent, if we increase the chain or molecular weight of the substituent, we will get decrease in the pK value. Sorry, increase in the pK value means we will weakening the acidity. Okay, will decreases the acidity of that compounds. अगर मैं जितना ज़्यादा अल्किल ग्रुप प्रोवाइड करते रहूँगा उतना ज़्यादा इसकी एसिडिटी कम होते रहेंगी. दैट शोज दैट कि अल्किल ग्रुप जो भी होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करूँगा तो क्या करेंगे? एसिडिटी को कम करेंगे. ये अपोजिट होता है आपके अमाइंस से. अमाइंस में क्या हो रहा था? अमाइंस में जब आर ग्रुप में लगा के आ रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करके आ रहा था मैं उसको, तो हो रहा ये था कि वो डोनेट कर रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे थे. जो नाइट्रोजन था उस पर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, जितना वो डोनेट कर रहे थे नाइट्रोजन उतना ज़्यादा माइनस होते जा रहा था. जितना जल्दी वो माइनस होगा बहुत इजीली वो डोनेट करेगा उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो भी कंपाउंड्स अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम लोग बेसिस बोलते हैं. बात समझ में आ रही? और जो भी H प्लस आयन को डोनेट करते हैं उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं. तो यहाँ पर उल्टा होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेंगे उन लोग क्या करेंगे? OH ग्रुप जो है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, तो O और H के बीच में ना बॉन्डिंग बहुत वीक होना चाहिए. मतलब जितनी वीक होंगी ना उतनी इजीली वो H प्लस आयन को डोनेट कर देगा. अभी अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बाबा वहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की निगेटिविटी को बढ़ा रहा हूँ, जैसा मैंने अमाइन में नाइट्रोजन की बढ़ाया था तो मेरे को काम आया था वो, है ना. यहाँ पर उल्टा है. अगर मैं ऑक्सीजन की निगेटिविटी को बढ़ाऊंगा तो उसकी और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. हाइड्रोजन जल्दी से लिबरेट नहीं होंगे और वो बेसिस पे होगा क्या कि हम लोग वीक करेंगे वैसे. समझ में आ रही है आप लोग को बात? Students, are you getting these points? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So examples आप लोग ने देखे थे कि एसिडिटी कम हो रही थी. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं. टेबल में कभी भी है ना फर्स्ट ऊपर वाली है ना हेडिंग देख लो आप लोग कि हम लोग कौन सा इफेक्ट फिलहाल पढ़ रहे हैं. अभी क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. So see some examples. First example is your acetic acid. pK value is 4.7. यहाँ पर
खाली एग्जाम्पल आप लोग नीचे देखते रहो कि हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को प्लेस करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला वाला है आपका मिथॉक्सी, उसके बाद में है नाइट्राइल ग्रुप, साइनो ग्रुप, और नीचे वाले में नाइट्रो ग्रुप है ना, एनो ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स तीनों भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, बेसिकली उन लोग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे। अब ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज हो चुका था, अगर हम लोग उसको स्टेबलाइज करते, पॉजिटिव चार्ज देके, या हम लोग उसके माइनस चार्ज को विड्रॉ कर करके उसको स्टेबलाइज करते, तो बहुत आसान हो जाएगा कि वो थोड़ा स्टेबल बन जाएगा और हाइड्रोजन जो स्पेस से इजीली रिलीज हो जाएगा, है ना। तो व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल डू, दे विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ योर कार्बोक्सिलेट एसिड्स। तो यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट मिलता है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अगर हम लोग प्लेस करते जाएंगे तो हम लोग की एसिडिटी बढ़ते रहेंगी। एग्जाम्पल में वही चीज़ हुई है कि नाइट्रो वाले की देखो पीके वैल्यू कितनी है, 1.7, और जहाँ पर अल्किल ग्रुप है फर्स्ट एग्जाम्पल एसिडिक एसिड की पीके वैल्यू है 4.7। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग ये चीज़ समझना है। नेक्स्ट टेबल, अल्फा हेलोजेंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन एसिडिक। अभी हेलोजन से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग समझ में आएगा कि एसिडिटी कैसे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में फ्लोरो है, सेकेंड वाले में फ्लोरो, थर्ड वाले में ब्रोमो। यहाँ पर अगर हेलोजन्स को मैं कंपेयर करूँ कि हेलोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा रहता है, तो फ्लोरीन होता है वो। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा वो आपका एसिड। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्लोरो वाला जो रहेगा एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूटेड, फ्लोरो एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसके बाद फ्लोरो और ब्रोमो इक्विवेलेंट रहेगा, जिससे हम लोग को समझ। So these are some effect of substituents on carboxylate acids. और क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हेलोजन से जो भी हम लोग की एसिडिटी बढ़ रही है, हेलोजन में भी अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में सिंगल हेलो कंपाउंड है, फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक एसिड है, सेकेंड वाले में डाइक्लोरो है, थर्ड वाले में ट्राइक्लोरो। एसिडिटी देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बहुत ज़्यादा एसिडिक रहेंगे देन डाई सब्स्टिट्यूटेड देन योर मोनो सब्स्टिट्यूट। ये चीज़ भी हम लोग के सामने आ गई, जितना ज़्यादा हेलोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे एसिडिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका हेलोजन रहेगा, उतना ज़्यादा वो एसिड को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हेलोजन्स में, उसके बाद क्लोरीन की बारी आती है, उसके बाद में ब्रोमीन की। तो आप लोग पीके वैल्यूज देखो, The fluoro substituted acidic acid is having pK value of 2.6, okay, and chloro and bromine is having 2.9। तो ये चीज़ और हम लोग को समझ में आ रही है कि जितना फ्लोरो सब मतलब हेलोजन्स में स्ट्रॉन्ग हेलोजन रहेगा, उतना ज़्यादा आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगेन और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर हम लोग हेलोजन्स को भी बढ़ा रहे हैं, हम लोग अगर डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कर रहे हैं, अगेन हमारी एसिडिटी बढ़ के आएंगी। तो दी मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड इज हैविंग 2.9 pK, डाइक्लोरो इज हैविंग 1.3 एंड ट्राइक्लोरो इज हैविंग 0.9। तो अगेन ये चीज़ समझ में आ रही है, जितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग हेलोजन से, हम लोग की एसिडिटी बढ़ते रहेगी। देन इफेक्ट ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस ऑन एसिडिटी। अभी बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है कि हेलोजन से आपके COH ग्रुप का जो कार्बन है, डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं हम लोग, जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में सिर्फ 1 कार्बन का डिस्टेंस है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 2 कार्बन का हो रहा है, एक ब्रिज आ रहा है, और थर्ड वाले एग्जाम्पल में 3 कार्बन की डिस्टेंस। तो अगर हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो एसिडिटी कम होती रहेंगी। देख लो आप लोग को पीके वैल्यूज दिखेंगी इन मोनोक्लोरो और क्लोरोइथेनॉइक एसिड इज 2.9, और आगे वाले एग्जांपल्स में इज 4 और 4.5। ओके, तो ये चीज़ और हम लोग को समझ में आ रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर सामने आ रहा है, और that will decreases the acidity of your carboxylic acid। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का क्वेश्चन बड़ा पूछा भी जा सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आप लोग को ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज की जाएंगी। अगर कुछ एग्जाम्पल्स आ रही है आपके सामने, कुछ ग्रुप्स आपके सामने अटैच किए हुए रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, बोला जाएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है या कौन सा सब्स्टिट्यूएंट एसिडिक बना रहा है या वीक कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको पहचानना है कि किस तरीके से इसका आंसर है। देन वी विल कम टुवर्ड्स द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक में कैसा रहेगा, सो एग्जाम्पल इज यूर वेल नोन बेंजोइक एसिड। तो अगेन ये इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन एंड H+ आयन। यहाँ पर 2 इफेक्ट प्ले करेंगे। क्यों? एक इफेक्ट तो रहेगा आपका इंडक्टिव, जो फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी था। यहाँ पर सेकंड इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि एरोमेटिक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी आएगा। आपको मालूम है कि बहुत बेंजीन जो रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है,
दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्योंकि उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, कॉन्जुगेशन होते हैं, मतलब अब बाजू बाजू में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। तो क्या होता है, देयर में बी शिफ्टिंग ऑफ योर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की बेसिस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिलते रहते हैं उसकी। अब इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, उतना ज़्यादा वो अच्छा कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर वो इफेक्ट आएगा और हम लोग को दोनों इफेक्ट की बेसिस पे हम लोग को एसिडिटी समझनी पड़ेगी। ओके, नीचे एग्जांपल दिखा रही है यहाँ पर कि आर ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपकी बेंजोइक एसिड पर है, अगेन आपको वही सेम रिएक्शन मिलेंगी, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और H+ आयन रिलीज होगा। नाउ सी द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। In the center you may find benzoic acid. On the fourth, the left side, it is para-methyl substituted benzoic acid. On the right side it is 3-iodo-benzoic acid. एक जगह मिथिल ग्रुप है, एक जगह आयोडो ग्रुप है। तो दोनों के केस में हो रहा ये है कि एसिडिटी तो हम लोग को दिख के आ रही है, एक में बढ़ी एक में कम हुई है, पर इफेक्ट कौन से वो देख लो आप। एक वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगेन वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू की एसिडिटी पर इफेक्ट करेगा, और ये वाला भी जो ग्रुप है आपका आयोडो ग्रुप, ये आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, बट इफेक्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। सो सी दिस टू एग्जांपल्स। यहाँ पर भी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग को देखते रहेंगे, कौन से ग्रुप्स हम लोग लगा रहे हैं और एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड एंड 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर जितना क्लोज है, मतलब इन लोग का बॉन्ड एंगल कम होते आ रहा है, तो उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती आ रही है। लास्ट एग्जांपल बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो आपको एसिडिटी मिल रही 2.9। फर्स्ट वाले एग्जांपल में एसिडिटी पैरा पोजीशन है, तो एसिडिटी इज 4। एक चीज़ और हम लोग को समझ में आ रही है होगा, जितना ज़्यादा एंगल कम होते रहेगा, डिस्टेंस कम होते रहेगा, उतनी एसिडिटी बढ़ती है। कैन सी द एग्जांपल्स। रेजोनेंस इफेक्ट की एग्जांपल अब तक देखी नहीं थे हम लोग ने। रेजोनेंस इफेक्ट की ये वाली एग्जांपल आपके सामने है। इफ योर बेंजोइक एसिड इज नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड, तीनों भी एग्जांपल है यहाँ पर, पैरा, ऑर्थो और मेटा, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा दिख रहा है, ऑर्थो दिख रहा है, उसके बाद में दिख रहा है आपको पैरा, और उसके बाद में आपको दिख रहा है मेटा। अब यहाँ पर एग्जैक्टली होना क्या है, यहाँ पर होना है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। अभी एक कंसेप्ट ये होता है इसमें कि why resonance effect is there in this structure, because if you are substituting group or if your substituent is charged compound, if it is having some charge, so it will participate in resonating resonance formation. Okay, NO2 पे कभी भी आप लोग देखो कि एक चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है NO2 का, और उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स NO2 के खुद के बनते रहते हैं। तो वो बेसिस पे क्या होगा कि कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्ट्रक्चर में हो रही है, चार्ज हो रहा है इस पर माइनस पॉजिटिव, तो कभी भी ना पूरे रिंग में जाके सर्कुलेट करता है, रेजोनेंस क्रिएट करता है या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये वाले एग्जांपल में यही होना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते रहेंगे। देखो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखेंगे। सेकेंड वाला टेबल देखो आप लोग, नीचे वाली बीच वाली इमेज। तो यहाँ पर NO2, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन हम लोग का बना था माइनस चार्ज ऊपर, और NO2 जो भी पोजीशन पर अटैच हुआ है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज रोटेट होते रहेंगे पूरे रिंग पर, और आप लोग जब एरो देंगे तो डुअल एरो देंगे आप लोग, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो इंटर कन्वर्टिंग रहेंगे। तो ये बेसिस पे पॉजिटिव चार्ज पहले ऑर्थो पोजीशन पर था, देन उसके बाद में देख रहे आप लोग ये, देन वो थोड़ा और शिफ्ट हुआ और अलग अलग पोजीशन पर वो शिफ्ट हो रहा है, और डबल बॉन्ड की भी शिफ्टिंग होती है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये सारे होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो इट विल कॉज रेजोनेंस इन योर कंपाउंड that will either increases or decreases the acidity of your compound. तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में भी शायद आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि कौन कौन से इफेक्ट आने वाले, और कितनी एग्जांपल हमारे सामने थी। अल्किल ग्रुप की थी, हेलोजेंस की आई थी, डाई ट्राई सब्स्टिट्यूट हेलोजेंस की एग्जांपल्स आई थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की आई थी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की आई थी, एंड हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी कवर कर ली है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस भी हमने देख ली। ये सारी चीज़ें हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों ने, पूरा कंपाइल करके एग्जांपल के साथ लिखना है आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत आई है इसमें। आप लोग देखेंगे जब क्वेश्चन सेशन होगा तो उसमें तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को देखने। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कैसे हम लोग। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये चीज़, जो कार्बोक्सिलेट बनाने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें लगने वाली है। हम लोग को बस एक रिएक्टेंट लगेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ उसमें
ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कि हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करनी रहेंगी, फाइनली हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, जैसा हम लोग ने अमाइंस में देखा था, अमाइंस में बहुत सारे रिएक्शंस थे जिसमें रिडक्शन करने के बाद अमाइंस मिल रहा था, तो उसी का अपोजिट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने के बाद में आपको बहुत सारे कंपाउंड ऑक्सीडेशन करने के बाद में आपको मिलने वाले कार्बोक्सिलिक। फॉर एग्जांपल आपके पास में अल्कोहल है, आपके पास में अल्डिहाइड कीटोन है, आपके पास में अल्कीन है, ये सारे कंपाउंड्स को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड। So in the first example, we can prepare the carboxylic acid from the alcohols, primary alcohols. Okay, it is the simple oxidation reaction. You see the reaction. This is your alcohol. On the arrow, we will write oxidizing agent. What we will get? We will get RCOH. Oxidation means addition of your oxygen or removal of your hydrogen. दोनों चीजें यहाँ पर हो गई हैं। तो एक ऑक्सीजन वहाँ पर ऐड होने के बाद में अल्कोहल का बनाया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए हम लोग को लगेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखिए तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है हमारे सामने, इसको यूज़ करके हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट फिलहाल ये टिपिकल जो एग्जांपल है प्राइमरी अल्कोहल वाली, इसमें एक हम लोग जो यूज़ करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम रहेगा हमारा KMnO4। अभी देखो आप लोग के सामने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिख रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4। चारों पांचों ऑप्शन हमारे सामने है। प्रॉब्लम इज दैट कि जो स्टार्ट के तीनों जो भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उन लोग एसिडिक मीडियम पे वर्क करते हैं, उनके साथ में हम लोग को एसिड यूज़ करना पड़ता है। और जो KMnO4 है उसके साथ में हम लोग को बेस यूज़ करना पड़ता है, KOH यूज़ करना पड़ता है। तो होना ये है कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं और उससे बना रहे हैं तो चांसेस ये होंगे कि बाबा बाद में एस्टर भी बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनते रहेगा। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड ने ये रिएक्शन में इंटरफियर किया, जैसे लास्ट रिएक्शन आप लोग नीचे देखो एकदम बॉटम पे, कि यहाँ पर अल्कोहल है और उसके साथ में इंटरेक्ट क्या कर ले रहा है आपका जो ऑलरेडी फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो कभी भी हम लोग को मालूम है कि एसिड और अल्कोहल के इंटरेक्शन से बनना क्या है, एस्टर बनना है। तो देयर में बी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो ये प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा एसिड आयंस इसमें इंटरफेयर ना करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं। और उसके लिए हम लोग हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन सा यूज़ करते हैं, KMnO4। आप लोग ये रिएक्शन में देखेंगे the best conditions for the oxidation of primary alcohols to carboxylic acids is under the basic conditions employing potassium permanganate। KOH हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग को सबसे पहले पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, बाद में उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद एसिडिफिकेशन करने के बाद हम लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलेट। सेम साइक्लिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है, साइक्लिक कंपाउंड में कहीं और जगह रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर COH ग्रुप है, सॉरी CH2OH ग्रुप है, इसी का ऑक्सीडेशन होगा और आपको COH। समझ में आ रही है आप लोग को रिएक्शन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So next reaction is your oxidation of aldehydes. So from this aldehyde we can get our carboxylic acid। aldehyde का फंक्शनल ग्रुप आप लोग देखो CH4, अगर हम लोग इसको और ऑक्सीडाइज करें फिर कन्वर्टेड इनटू COOH। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले केस में क्या दिखा रहे हैं, हियर वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो दोनों भी यूज कर सकते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहे हैं वही चारों एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रहेंगी। कंडीशंस भी बता रहे हैं कि अगर आप लोग क्रोमियम ऑक्साइड यूज करेंगे तो वाटर भी यूज करना है और थोड़ा सा उसमें एसिड भी रहेगा, मिनरल एसिड। या तो आप लोग सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करें तो एसिड के प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन, और अगर आप लोग KMnO4 यूज करें तो बेस के प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन। हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब यूज करेंगे उसके पीछे कुछ रीजन है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। तो सी द रिएक्शन, दिस इज योर अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड से हम लोग को बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग ने KMnO4 यूज किया है, हम लोग को हमारा कंपाउंड कन्वर्ट होकर मिला है। कभी कभी होना ये है कि आपके कंपाउंड पर जो आप लोग स्टार्टिंग मटेरियल यूज करें, जो भी आपने अल्डिहाइड यूज किया, तो वहाँ पर अल्डिहाइड पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो कभी कभी वो इंटरफेयर कर लेते हैं रिएक्शन के बीच में। दिस इज द प्रॉब्लम। तो वो केस में हम लोग क्या करना पड़ता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है, ये ऑक्सीडेशन हम लोग परफॉर्म कर रही है, वो सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिएक्शन रहती है, तो कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं और हम लोग को हमारा काम अचीव होकर मिल जाता है। सो योर सिनेमाल्डिहाइड
after using your silver oxide it will get converted into cinnamic acid. Well known example. ये रिएक्शन हम लोग ने पढ़ी है कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हम लोग ने यूनिट 2 में पढ़ी थी हमने इसको. स्टार्टिंग मटेरियल इज योर अल्कीन और अल्कीन के पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऑक्सीडाइज दिस C डबल बॉन्ड C with the help of ozone in presence of some agents, for example ZnHCl or H2O2. तो केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये रिएक्शन में ZnHCl भी हम लोग यूज कर सकते हैं, H2O2 भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर स्पेसिफिक अगर आप अल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो वही ZnHCl हम लोग यूज करेंगे. ये रिएक्शन होना क्या, डबल बॉन्ड जो भी है ना कार्बन वाले, दोनों भी कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड्स है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है. तो हम लोग को आइदर वी विल गेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, और वी विल गेट 2 अल्डिहाइड्स और 2 कीटोन्स, और वी विल गेट अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसे हम लोग को एग्जांपल्स मिलने शुरू हो जाते हैं. तो एक अच्छा मेथड है ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस से या तो हम लोग एल्फेटिक कंपाउंड या तो साइक्लिक कंपाउंड्स दोनों का हम लोग ओजोनोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जांपल में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, और सेकंड वाली जो एग्जांपल है जिसमें हम लोग ने साइक्लोहेक्सेन यूज किया था साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पर हमको क्या मिला है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है. नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करें क्या ये रिएक्शन होगी? यस, यहाँ पर भी रिएक्शन होगी. हमारे सामने एग्जांपल है 1 ऑक्टाइन की, 8 मेंबर कंटेनिंग अल्काइन. अगेन हम लोग ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे. हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी R ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ दी साइड ऑफ योर डबल और ट्रिपल बॉन्ड. अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों कार्बन किससे जुड़े हैं, वो R ग्रुप देख के वो कंपाउंड बनता है. अभी राइट वाला कार्बन किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है तो फॉर्मिक एसिड बना रहा है. लेफ्ट वाला किससे अटैच है, हेप्टेन यूनिट से अटैच है तो आपको हेप्टेनोइक एसिड. बस यही चीज़ आपको मैं देखनी है. साइक्लिक कंपाउंड में भी ये होगा. यहाँ पर आपके पास क्या था, एक एग्जांपल की आपको उसका मिला है कार्बोक्सिल. देन कार्बोक्सिलेशन ऑफ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बनाना पड़ता है हम लोग को, इज योर RNGX. हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन हम लोग CO2 ऐड करेंगे वो पूरे रिएजेंट में और हम लोग को मिलेगा हमारा कार्बोक्सिलेट. सो सी द रिएक्शन RBr Mg हम लोग ऐड करेंगे वहाँ पर, तो RMGX बन गया वो RMGBr. आफ्टर एडिशन ऑफ CO2 व्हाट विल वी गेट, वी आर गेटिंग RCO2 MgBr. फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCOH. नीचे दिखा रहा है पापा कैसा हुआ ये रिएक्शन. तो C डबल बॉन्ड O को दिखा रहा है कि किस तरीके से मैकेनिज्म और कौन से ग्रुप का अटैक कहाँ पर हुआ. तो R ग्रुप का अटैक एक साइड से हो गया आपके कार्बन पर C डबल बॉन्ड O वाले, और MgX का अटैक कहाँ पर हुआ, ऑक्सीजन पर हुआ. तो इनिशियली आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिला, फाइनली वो कन्वर्ट हुआ आपके कार्बोक्सिलेट एसिड. सो कार्बोक्सिलेशन ऑफ योर ग्रिग्नार्ड. अगेन कुछ एग्जांपल के साथ में बताया यहाँ पर जैसे आपका रिएक्शन परफॉर्म हुआ है. यहाँ पर सेम कंडीशन में थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लिया है. एंड कंपाउंड को क्या मिल रहा है हम लोग को, कार्बोक्सिलेट एसिड. देन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल से हम लोग ने अमाइन भी बनाया था, हम लोग ने वो टाइम पे रिडक्शन किया था, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनियम आयन फ्रॉम दिस रिएक्शन. तो आपके सामने एग्जांपल है, कोई भी R ग्रुप लेने कंटेनिंग नाइट्राइल ग्रुप हम लोग ले लेंगे, कंपाउंड ले लेंगे, तो हीट करेंगे हम लोग, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. हाइड्रोलिसिस होने के बाद में नाइट्रोजन वहाँ से अलग हो जाएगा और कार्बन पर आपका COH ग्रुप बन जाएगा. इस पे एलिफेटिक नाइट्राइल से आप लोग इजीली बना सकते हैं. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट फॉर्म योर कार्बोक्सिलेट. आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करके देखेंगे, अगर एग्जांपल चाहिए. और जितने भी नाइट्राइल है क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर देखो लास्ट वाली रिएक्शन क्या दिखा रहा है, हाइड्रोलिसिस किया है अपने वाटर की प्रेजेंस में, बट एसिडिक मीडियम यूज किया है. तो पेंटेन डाई नाइट्राइल आपका किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है. पेंटेन डाई ऑइक एसिड, जो भी CN ग्रुप है वो COH में कन्वर्ट होगा.
Next, side chain oxidation of alkyl benzenes to benzoic acid. Aromatic compound की example लेंगे हम लोग. तो अगर हमारे पास में R ग्रुप, वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल CH3 है, अल्किल ग्रुप है, तो अल्किल कंटेनिंग बेंजीन रिंग इज नोन एज योर टोलिन, है ना. कि आपकी बेंजीन रिंग पर एक CH3 ग्रुप है, उसको हम टोलिन बोलते हैं. एक बहुत फेमस रिएक्शन है. तो ये वाली एग्जाम्पल में हो रहा है ये कि एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें एक अल्किल ग्रुप है, टोलिन है, मतलब आपका एग्जाम्पल. आपके बेंजीन रिंग पर एक CH3 ग्रुप हम लोग कंसिडर करते हैं, टोलिन. और टोलिन कभी भी KMnO4 के प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है. बहुत फेमस रिएक्शन है. CH3 gets converted into COH group. तो ये वाली एग्जांपल में देख लो आप लोग, either we will use chromium oxide water combination or we will use KMnO4 in basic medium KOH. So we will get benzoic acid from this toluene. Okay. Simultaneously अगर हम लोग रिसोर्सिनॉल यूज कर रहे हैं, नीचे वाली एग्जांपल देख लो, 2 मिथिल ग्रुप है वहाँ पर. It's not रिसोर्सिनॉल, I think it is Cresol derivative. For example, it is I think Cresol. So it gets converted into what your phthalic acid. Phthalic acid मतलब आपका फिनल रिंग है, उसके एडजेसेंट 2 COH ग्रुप है, इसको phthalic acid. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. यहाँ पर अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लग गए और आपका कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना कवर कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या कवर किया. हम लोग ने देखा था कि भाई नेमिंग कैसे रहती कार्बोक्सिलिक एसिड, covered the physical properties of carboxylic acids. Then we had covered the acidity of carboxylic acid and methods for the preparation of carboxylic